Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and completing your exercise also. But one thing I would like to say is that you must take care of yourself also. Eat healthy food, drink lots of water and wash your hands regularly. Okay? Children, you know that we are doing chapter 14 of your EVS textbook. And the name of the chapter is Animals Around Us. In this chapter, we have already discussed many of the topics like pet animals, domestic animals, wild animals, milch animals, mammals, amphibians and reptiles. These we have already discussed. Let me write whatever we have discussed, वो मैं लिख लेती हूँ and we will revise those things. Children, we discussed pet animals. Then domestic animals. Then wild animals. Milch animals, mammals, reptiles. Okay, and one more, sorry, amphibians. Amphibians also we have discussed. These we have already discussed. So in today's video we will continue with the chapter, but let us revise quickly whatever we have done, whatever we have discussed regarding these types of animals. Children, first is pet animals, and in this we discussed that pet animals are those animals which we keep at our home, inside our home. We love them. They are like our companions, and we take care of them. We give them proper food. We take care of their hygiene, and most important thing is that we love them. We treat them as family members. Then domestic animals. Children, domestic animals are also called farm animals, and we keep them because they are useful for us. Children, we do not keep them inside our house, in our own house. We make separate house for these animals and we love them. हम अपने domestic animals को भी बहुत प्यार से रखते हैं. उनके लिए हम separate घर बनाते हैं. We make separate homes for them and we keep them because they are very useful for us. Either we get something from them or they help us in our work. For example, cow, buffalo, goat, hen, horse, donkey, camel, these are all domestic animals. We get milk, meat, etc. from these animals, and also they help us in our work, like they are load carrying animals and they are used for transportation. So we keep these animals. Next is wild animals. Children, wild animals are the animals those which live in jungle, in forest, or on mountains, or in grasslands. Why I am talking about grasslands? Because there are grasslands which are more than 3 meters of height. जो घास है वो 3-3 मीटर की होती है और उनमें भी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं उनमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. ओके, तो ग्रासलैंड्स आर समटाइम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वाइल्ड एनिमल्स वी फाइंड इन फॉरेस्ट, grasslands or on mountains, and these animals can be dangerous for us, so we should not go near them. We can see them either in zoo
or we can see them in national parks or wildlife sanctuaries, but of course not from not going near to them. We should not go near to them because they may be dangerous. And wild animals are lion, tiger, wolf, giraffe, elephant, and many other. जिसके बारे में हमने बात की. Then milch animals. Children, these animals are milk-giving animals. The animals from which we get milk. They are called milch animals, like cow, goat, buffalo, camel, etc. Then talking about mammals. Mammals are animals which give birth to babies. They do not lay eggs. वो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे देते हैं. Mammals are the animals that give birth to babies and feed their babies on their milk. Like all the animals that give birth, like dog, cat, elephant, lion, tiger, they all are mammals. And we humans are also mammals. Water animal में whale है, dolphin है, these are also mammals. Then talking about reptiles. Children, we talked about reptiles. Reptiles are the animals that crawl along the ground, or they move on their with their bellies close to ground. They move with their bellies close to ground. Either they have short legs or very small leg. And reptiles are basically cold-blooded animals. I have told you meaning of cold-blooded in my previous video. And then we talked about reptiles, like there are reptiles which have no legs, like snake. Otherwise lizards, chameleon, crocodile, they come under this reptile family. Then talking about amphibians. Children, amphibians are animals which can live both in water and on land. Amphibian का मतलब ही होता है two lives. First part of their life they live in water, and second part they live on land. They can when they are in water they breathe through gills, and gradually they grow. When as they grow they have legs, and they grow legs and lungs for breathing in air, so that they can walk on land. And these animals, they live near wet area, swampy area, near forest area, pond. ऐसे जगह पे ये animals मिलते हैं. ठीक है? They can breathe through their skin also. Frog comes under this category. Crocodile is also amphibian. Okay. Then let's talk about now insects. Our topic for today is rodents and insects. Children, rodents किसको बोलते हैं? Rodents are they are small animals with sharp teeth. We'll talk about rodents. Children, rodents are small animals. They are small in size with sharp teeth. उनके दांत कैसे होते हैं? Sharp होते हैं. Like rat, rabbit. They are called rodents. उनको हम rodents बोलते हैं. So rodents are small animals. Small animals with sharp teeth, like rat, rabbit. Okay, small animals with sharp teeth. छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं और उनके जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं. आपने माउस देखा होगा, या जो बड़े वाले जो रैट होते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं, उनको भी रोडेंट बोलते हैं. और वो दे लिव इन बरोज, दे लिव इन होल्स, इन डार्क एरियाज.
थोड़ा वो होल में रहते हैं या फिर बरोज में रहते हैं, ठीक है। जैसे रैबिट बरो में रहता है एंड रैट जो है वो होल्स में रहता है। देन लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ insects are small animals. Insects are generally small animals and we see insects all around us. हमें अपने घर के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। हम इनको क्रीपी क्रॉली भी बोलते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो क्रॉल करते हैं, some insects they cannot fly, so they creep on ground, so we call them creepy crawly children. But most insects have wings which help them to fly. Very few insects are there that could not fly, like spider and ant जो है वो उड़ नहीं सकते हैं। But there are some ants that can fly. कुछ ऐसी ants होती हैं जो उड़ सकती हैं, but generally जो ants हम अपने आसपास देखते हैं वो उड़ती नहीं है, उनके विंग्स नहीं होते हैं। देन स्पाइडर जो है वो भी क्रॉल करता है, उसके भी विंग्स नहीं होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बटरफ्लाई, उसके विंग्स होते हैं। देन हाउस फ्लाई, मस्किटोज, इन सब के विंग्स होते हैं। कॉकरोच, ये सारे जो है ये विंग्ड इंसेक्ट्स हैं। और जो सबके लगभग 6 पैर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। फ्यू हैव 8 लेग्स, लाइक मैंने बताया स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं। एंड जो कॉकरोच होता है वो जनरली आप देखोगे डार्क प्लेसेस में रहता है। ये दिन में तो बिल्कुल कहीं छुपे रहते हैं, पर रात में ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और ये नॉर्मली ना किचन में जहाँ आप कूड़ा फेंकते हो, गार्बेज, उसमें देखेंगे, या कहीं खाना वाना होगा ना, फूड का स्क्रैप्स होगा, वहाँ पे ये दिखाई देते हैं। देन एंट्स, जो एंट्स होते हैं इन्हें हम सोशल इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। ये भी अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप कभी चींटियों को ऐसे खाली नहीं देखोगे, दे कीप ऑन वॉकिंग, हमेशा मूव करते रहते हैं, कुछ खाने का सामान लेकर या अदरवाइज लाइन बना के बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने चलते हुए देखा होगा इन ये एंट्स को। और देन अगर हम बात करें हाउस फ्लाइज की, उनके पंख होते हैं एंड सबसे कॉमन आपको दिख जाएगी ये मक्खी, जिसको हम बोलते हैं। और ये एक्चुअली में दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये गंदी चीज़ों पे बैठते हैं, फिर खाने पीने की चीज़ों पे बैठ जाते हैं, तो गार्बेज भी ज़्यादा दिखते हैं। जहाँ पे कूड़ा फेंका रहता है, डंप्स, वहाँ पे ये ज़्यादा दिखते हैं एंड दे कैरी मेनी डिजीजेस, मस्कीटोज। देन हाउस फ्लाइज। अब मस्कीटोज की बात करते हैं। मस्कीटोज भी क्या है, दे आर वेरी डेंजरस। सुनने में बहुत लगता है कि अरे छोटा सा तो मच्छर है, लेकिन दे आर वेरी डेंजरस। कितनी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मस्कीटोज की वजह से होती है और जिनसे हमारी जान भी जा सकती है। दे स्प्रेड हार्मफुल डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ये बीमारियां जो है ये मस्कीटोज से ही होती हैं। फिर हम बात करते हैं हनी बी की। वो भी इंसेक्ट है। हनी बी को भी हम सोशल इंसेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कॉलोनीज में रहती हैं, ये ग्रुप में काम करती हैं एंड वी गेट हनी फ्रॉम देम एंड हनी बीज आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। और ये पॉलिनेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। या पॉलिनेशन के बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स। देन स्पाइडर की हमने बात की। स्पाइडर के विंग्स नहीं होते हैं, पर स्पाइडर क्रॉल करता है एंड इट मेक्स वेब। मकड़ी के जाले देखा होगा ना, पुराने घरों में होते हैं, या आप अपने घर को अगर सफाई रेगुलर ना करो तो जगह जगह पे ये वेब बना देते हैं, ठीक है, और ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। देन वॉर्म्स, जो वर्म्स होते हैं, कीड़े जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो भी इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, मिट्टी में जो रहते हैं। और सबसे कॉमन जो है वो अर्थवॉर्म है, जिसे हम हिंदी में केचुआ बोलते हैं ना। आप मिट्टी खोदते हो, गिली गिली मिट्टी, तो उसके अंदर से वो स्नेक पतले पतले सांप के जैसे दिखते हैं। बारिश में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं रोड पर, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन वर्म्स है, पर ये फार्मर के फ्रेंड कहलाते हैं अर्थवॉर्म, बिकॉज दे मेक द सॉइल फर्टाइल। तो हमने कुछ इंसेक्ट्स के नाम जाने, है ना, इंसेक्ट्स के बारे में हमने जाना। अब हम बात करें, मैं यहाँ इंसेक्ट्स के बारे में लिख देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट रिटन एनीथिंग। इंसेक्ट्स किसको बोलते हैं? दे आर स्मॉल एनिमल्स
they are small animals they are small animals. Most of the insects have 6 legs. Most of the insects have 6 legs. मैंने बोला मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स have 6 legs. इसका मतलब ये नहीं है कि सबके 6 legs होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. ओके, एंड then some of them have wings for flying. Some of them have wings for flying. While some crawl on the ground. Crawl on the ground. What? They are small animals. Most of the insects have 6 legs. Some of them have wings for flying, while some crawl on the ground. Insects are very small animals. Insects are very small animals. Most of the insects have 6 legs. ज़्यादातर के 6 legs होते हैं. Some of them have wings for flying. कुछ के पंख होते हैं उड़ने के लिए. While some crawl on the ground. और कुछ जो है वो जमीन पर क्रॉल करते हैं. ठीक है, तो इतना हमने जाना इंसेक्ट्स के बारे में. और इंसेक्ट्स के नाम भी मैंने आपको बताया, जैसे कि एंट, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, मस्किटोज, देन वर्म्स, देन स्पाइडर. ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. बीटल्स हैं, लेडी बर्ड है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. हमने कुछ के नाम जाने हैं हमने. अब हम बात करेंगे बर्ड्स. We'll talk about the winged creatures, that is bird. Children, I hope you all have seen birds. सबने birds तो देखी होगी. कोई ना कोई बर्ड तो सबने ही देखी है ना, हमारे घर के आसपास. और अपने स्कूल में तो बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, बिकॉज वी हैव मेनी ट्रीज. हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहाँ पे बर्ड्स भी बहुत सी आती हैं. और आपके घर के पास भी ऑफकोर्स होती होंगी, कई बर्ड्स होती होंगी. और पर सिटीज में हमें क्योंकि ट्री कम होते हैं तो इसलिए बर्ड्स भी कम दिखती हैं. जो बड़े शहर होते हैं जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ पर हमें बर्ड्स भी कम दिखती हैं. पर अदरवाइज जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, वहाँ पर हमें बर्ड्स भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, है ना. तो जो बर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली तो हमें ट्री पे ही रहते हैं और इनके विंग्स होते हैं. बर्ड्स का सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके विंग्स होते हैं. दे हैव 2 विंग्स फॉर फ्लाइंग. और इनका मुंह की जगह पे क्या होता है, बीक होता है. इनके चोंच होती है. ठीक है, बर्ड्स की चोंच होती है. Let's talk about birds. ओके, तो जो हमने बर्ड्स के बारे में जो हमने बात किया कि जो बर्ड्स होते हैं इनके जनरली जितने भी बर्ड्स होती हैं उन सबके बीक होती है. ऑफ कोर्स वो जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज की होती है.
और शेप मतलब किसी का हुक्ड होता है, किसी की छोटी सी शॉर्ट होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग बीक होती है, किसी की पतली लंबी सी होती है, किसी की थोड़ी सी ऐसे हुक के जैसे बनी होती है. बट दे ऑल हैव बीक्स टू ईट फूड. और ये बीक्स कैसे होते हैं, इनके ईटिंग हैबिट पे डिपेंड करता है कि ये लोग जो चीजें खाती हैं उसी के हिसाब से नेचर ने इनको बीक्स दिया हुआ है. ठीक है, जिनके हुक्ड बीक्स होते हैं वो लोग फ्लैश खाने वाले बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हॉक है, जैसे कि ईगल है. और जो स्पैरो है उसका आप देखोगे छोटा सा लेकिन स्ट्रॉन्ग बीक होता है, क्योंकि वो कुछ छोटे छोटे दाने पिक करती है या कुछ ग्रेन्स को ब्रेक करके खाती है. देन यू मस्ट हैव सीन द बीक ऑफ पैरट. थोड़ा सा हुक रहता है ताकि वो फ्रूट्स को में होल्ड कर करके उसको खा सके. तो एवरी बर्ड हैज बीक एज पर इट्स ईटिंग हैबिट. वो किस तरह का खाना खाती है उसके हिसाब से उनके बीक होते हैं, बर्ड्स के बीक होते हैं. बट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. लेकिन कुछ एक ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, लाइक ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो है वो उसके विंग्स हैं पर वो उड़ नहीं सकते. ऑस्ट्रिच लेकिन बहुत तेज भागते हैं. जो ऑस्ट्रिच बर्ड होते हैं वो बहुत तेज भागते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड है. देन वी हैव पेंगुइन्स. पेंगुइन्स भी बर्ड है, दे कैन नॉट फ्लाई. उनके भी ऐसे होते हैं विंग्स फ्लैपी, लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, तो पर बाकी जितने भी बर्ड्स हैं जनरली दे फ्लाई. कोई बहुत ऊंचा उड़ता है, कोई थोड़ा नीचे उड़ता है. लाइक ईगल. ईगल जो है आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता है. ठीक है, लेकिन हर बर्ड का अपना एक हाइट होता है, वो बर्ड्स उड़ते हैं. देन उनके दो पैर होते हैं. अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि जो पेट एनिमल्स पढ़ा उसमें मैक्सिमम के 4 लेग्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर बर्ड्स. डोमेस्टिक एनिमल में सबके 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं. वाइल्ड एनिमल सबके 4 पैर होते हैं, उसमें भी 4 लेग्स होते हैं. मिल्च एनिमल उनके भी 4 लेग्स होते हैं. रेप्टाइल्स में हमने पढ़ा कि उनके शॉर्ट पैर होते हैं, स्मॉल लेग होते हैं, और कोई कोई बिना लेग वाले भी होते हैं. ठीक है, फिर हमने पढ़ा एम्फीबियंस. उसमें भी 4 लेगेज हैं एनिमल्स. नाउ बर्ड्स में 4 पैर नहीं होते हैं, इनके 2 पैर होते हैं. बर्ड्स के 2 पैर होते हैं, 2 विंग्स होती हैं, और एक चोंच होती है, बीक होती है, और एक टेल जैसा होता है जो उनके विंग्स के साथ जो टेल जैसा बना होता है. ठीक है, एंड वो जो विंग्स होते हैं उसमें फेदर्स होते हैं. विंग्स में फेदर्स बने होते हैं, फेदर्स लगे होते हैं, और जैसा मैंने बताया कि टेल होती है. और जनरली जो है बर्ड है वो ट्रीज में रहती है. सम आर देयर दैट लिव नियर वाटर, नियर पॉन्ड. जो वाटर बॉडी के पास, नदी के किनारे या पॉन्ड के किनारे अपना नेस्ट बना लेते हैं, या किसी झाड़ी में के नीचे जमीन पर नेस्ट बनाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द बर्ड दे लिव ऑन trees and they make their nest on trees. Okay, let's write about birds are winged creatures, yeah, animals that can fly. Birds are animals that can fly. They have, क्या होता है उनके 2 legs. They have 2 legs, 2 wings, with feather. दो जो उनके डाला होते हैं विद फेदर्स. वन बीक, एक चोंच होती है, एंड टेल.
जो बाकी एनिमल होते हैं, लैंड एनिमल जो होते हैं, उनके जैसे इनकी पूंछ नहीं होती है, बट दे हैव अ टेल विथ 2 विंग्स, 2 विंग्स की पीछे से उनकी एक टेल जैसा उनका होता है. ओके, एंड दे जनरली लिव ऑन ट्रीज. बट आई एम सेइंग जनरली, क्योंकि सारे बर्ड जो है वो पेड़ों पर नहीं रहते, सारे बर्ड नहीं रहते. कुछ एक बर्ड होते हैं जो मैंने जैसा बताया कि जमीन पर भी अपना नेस्ट बनाते हैं. पेंगुइन है वो ट्री पे नहीं रहता है ना. तो ये लोग कुछ बुशेस के नीचे बना लेते हैं, कोई जो है वो पॉन्ड के किनारे बना लेता है. इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया कि ज्यादातर ट्री पर रहते हैं बर्ड्स. ओके, और ये मैक्सिमम ये लोग इंसेक्ट खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं. कुछ जो है वो हम जो खाना जो हम फेंक देते हैं बचा हुआ वो खाते हैं, और कुछ जो है वो फ्लैश खाते हैं, जो मीट भी खाते हैं. ठीक है, तो इनकी हैबिट्स भी हमने डिस्कस कर लिए. नाउ विल टॉक अबाउट एनिमल्स का. अब हमें जनरली जो खाने पीने की हैबिट जो हमने डिस्कस की, उसको थोड़ा एक बार हम डिस्कस करते हैं. मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स कैन बी हर्बीवोर्स, कैन बी कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. जो एनिमल्स हैं वो या तो कार्निवोर्स हो सकते हैं, मांस खाने वाले हो सकते हैं, हर्बीवोर्स यानी प्लांट खाने वाले हो सकते हैं, या फिर ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं. ओके, तो एनिमल्स जो है वो तीनों तरह के हो सकते हैं. तो और इन तीनों के अलावा एक और होते हैं जिनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ये जो हैं दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. जो एनिमल मर जाता है उसका ये मांस खाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स. ओके, अब कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो फ्लैश होती हैं, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि लायन है, टाइगर है ना, फॉक्स है, ये सब क्या है, लेपर्ड है. दीज आर ऑल कार्निवोर्स. ये लोग मांस खाते हैं, ये लोग फ्लैश खाते हैं. ठीक है. देन हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स भी बहुत सारे हैं जो कि प्लांट खाते हैं. ठीक है, हर्बीवोर्स भी बहुत सारे हैं जो कि प्लांट खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, डियर, एलिफेंट, जीब्रा. ये सब क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं. दे आर हर्बीवोर्स. ओमनीवोर्स में कौन है? जो फ्लैश भी खाता है और प्लांट भी खाता है, मतलब वेजिटेरियन खाना भी खाता है. ऐसे में कौन है? डॉग है. डॉग को आप मिल्क दे दो और चपाती दे दो तो भी खा लेते हैं, और फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं. क्रो को मैंने बताया था, क्रो जो है वो भी क्या है? ओमनीवोर है. क्रो भी फ्लैश खाते हैं और दे ईट वेजिटेरियन फूड. जो खाना है, रोटी चपाती कुछ दे दो, चावल, वो भी खा लेते हैं. बेयर भी जो है वो ओमनीवोर है. स्कैवेंजर्स में कौन से होते हैं? जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. उसमें वल्चर है, हाइना है. वल्चर एक जिसको हम हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, एक तरह का बर्ड होता है, वो जो है स्कैवेंजर है. हाइना इज ऑल्सो स्कैवेंजर. ठीक है, तो ये हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा. कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जाना इस चैप्टर में कि एनिमल्स का उनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं. सभी एनिमल्स हैं. ठीक है, हमने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा और उनका कुछ कॉमन होता है. एनिमल्स में कुछ चीजें जो होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि सारे एनिमल्स जो हैं, ऑल एनिमल्स दे नीड फूड टू स्टे अलाइव. सभी एनिमल्स को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए. दिस इज कॉमन. जितने भी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो पेट एनिमल हो, डोमेस्टिक एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल हो, वाटर एनिमल हो, व्हाटएवर, इंसेक्ट्स हो, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. सबको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे उन्हें एनर्जी मिलती है. जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। पहला क्या हमने किया कि दे ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव, सबको खाना चाहिए, ठीक है। दे नीड फूड टू स्टे अलाइव। ओके, सबको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, बिकॉज एवरीबडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, सबको खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे ऑल हैव सेंस ऑर्गन्स, दे ऑल हैव सेंस ऑर्गन्स। सबके अपने अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम, टू फील different things around them. Okay, they all have sense organs. सबके अपने अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे होते हैं ना आंख, नाक, कान, स्किन, टंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही एनिमल्स के भी अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम। ओके, तो ये हमने पहला किया, ये दूसरा किया। और ऑल एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए सभी एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन्स का यूज करते हैं, कुछ लंग्स से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, कुछ स्किन से करते हैं। सो दे ऑल हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑल्सो, ठीक है। दे यूज या एनिमल्स यूज कर देते हैं अभी, एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ organs for breathing. Okay, they use different types of organs for breathing. सांस लेने के लिए वो अलग अलग organs का यूज करते हैं, ठीक है। And all animals they give they reproduce, मतलब वो चाहे अंडे देते हैं या फिर बच्चे देते हैं। ईदर दे ले एग और दे गिव बर्थ टू बेबीज, सो दे ऑल रिप्रोड्यूस। ओके, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस। ये हमने बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स के उसके बारे में हमने बात की कि ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना। सो या तो वो अंडे देते हैं या वो बच्चे देते हैं। जो मैमल्स होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो मैमल्स नहीं होते हैं दे ले एग्स। तो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, जो बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमने बात की कि दे नीड फूड टू स्टे अलाइव, दे ऑल हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम, एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग एंड दे ऑल रिप्रोड्यूस। और ये जो है सारे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, ठीक है। तो इतना हमने आज एनिमल्स के बारे में जाना। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं और हम आगे जो है एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।